Surface area and volume we are starting. Okay, formulas we have revised enough. जिन बच्चों ने formulas की explanations नहीं की हैं, it is already there in the channel. Do let me know. I will share you the link of that video. Okay. चले अभी यहाँ पर जल्दी जल्दी से attendance mark कर ले पहले एक बार. Right, संजना, you will be marked absent. वो audio ही connect नहीं है, उसको क्या बताएं? अगम आज मुझे मैम से बात करवाना ओके संजना मैम। के लिए, ठीक है ना? ओके, चलो बेटा जी, इसमें देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस नाउ. ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आएंगी, दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन नाइन्थ, बट वी विल discuss this in detail. And everyone, put two stars, big stars on this question. जो आप कन्वेंशनली सोचेंगे आंसर इसका, वो गलत आएगा. So whatever is written in the NCERT is your Bible. You will follow this method here. Okay. So इस पे डबल स्टार लगा लो. इस पे क्लास के चैप्टर के एंड में बात करेंगे. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बर्ड बात के नाम से ही जाना जाता है ये क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. चलो एक्सरसाइज 12.1 से स्टार्ट कर रहे हैं. लेट अस क्विकली स्टार्ट. एवरी टाइम यू आर अटेम्प्टिंग एन अ क्वेश्चन हेयर, अ डायग्राम इज अ मस्ट, बट नॉट टू स्केल. ठीक है. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Let me draw a picture for you here. ये एक क्यूब है. Now there is one more cube which is joined with this. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखें. 64 सेंटीमीटर क्यूब का ये वॉल्यूम एक क्यूब का है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन टू यू 64 centimeter cube. वॉल्यूम का फॉर्मूला इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, who will tell me the formula? विदुषी कैमरा ऑन करो बेटा. बताओ अद्विका बेटा. मैम साइड क्यूब. Right, side into side into side, a cube is 64. 64 can be written as 4 cube, right or not? 4 fours are 16, 16 fours are is 64. So a is 4, right everyone? Cubic centimeter tha, so a is 4 centimeters. Now you know one side of this cube. Find the surface area of the resulting cuboid. Now this resulting cuboid, you have to find out the surface area of this. Okay, everyone, listen carefully. Whenever you join two figures end to end, only one dimension changes. So this is the length that has changed now. For this, together they have become 8 centimeters. But the width has remained the same, 4. The height has remained the same, 4. Right or not, everyone? So resultant cuboid has got dimensions L into B into H, that is 8 into 4 into 4. Now we need to find out the surface area here. When they have not mentioned you which surface area to find, it's always the total surface area. The obvious one is the TSA here. So total surface area of cube is equals to 2 LB plus BH plus HL. So that is product of two dimensions at a time, right? So let's start. 8 fours are 32 plus 4 fours are 16 plus 8 fours are 32 again, right or not? So it's like a combination of this, this, and this. So product of two at a time you have taken. Now solve this. 32 doubled is 64, 64, 16 is 80.
बेटा कैलकुलेशंस देखो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद, यू नो आई आई गो रॉन्ग समटाइम्स, है ना? तो इसीलिए प्लीज कीप अ चेक ऑन इट। 160 centimeter square units. So that is the TSA of that cuboid. Okay, everyone or not? Any doubt here? चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बच्चे, करें नेक्स्ट। Okay, going to the next question, question number 2. A vessel is in a form of hollow hemisphere. So let me make a hollow hemisphere. Vessel है तो of course I'll put it with its, keep it with its open side up. Vessel है ना, vessel का purpose is holding things. So a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. So now I need to make a cylinder on the top. Got it everyone or not? Clear or not everyone? The diameter of the hemisphere is 14. Now everyone listen. Make a rule for yourself. In the diagram, you would never write the diameter. You will always write the radius because that is what you use in orally formulas. किसी भी formula में हमने D नहीं पढ़ा है ना, सब जगह R ही पढ़ा है ना, तो इसीलिए we'll make it a habit कि हम हमेशा automatically given diameter को half करके ही diagram में लिखेंगे. First thing, it will make things spontaneous for our mind to calculate. Second thing, diagram जो है वो उससे जब आप रिलेट करके फॉर्मूलाज में वैल्यूज डाल रहे हो तो गलती नहीं करोगे। डायग्राम में डायामीटर मार्क किया है, वैल्यू रेडियस का पुट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे पुट द वैल्यू ऑफ डायामीटर इन द रेडियस। दैट इज अ वेरी कॉमन एरर दैट वी फाइंड। ओके, तो वो नहीं करना है। यू हैव टू मार्क द रेडियस ओनली हेयर। नाउ दे हैव टोल्ड यू हेयर द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14, सो 7 सेंटीमीटर। ऑल्दो बच्चे मार्किंग स्कीम के लिए आप यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ डायामीटर, दैट इज 14/2 7। मार्किंग स्कीम के लिए काम करना है लेकिन डायग्राम में डायरेक्टली 7 ही लिखना है। ओके, चले अभी आगे। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द वेसल which is 13 centimeters. Got it everyone or not? Find the inner surface area of the vessel. So inner surface area of cylinder plus inner surface area of the hemisphere would give you the inner surface area of the vessel, right or not? So I will write, see in the question, you will start from finding the radius of the given figure. I am not writing that here. I am directly writing inner surface area of vessel. तो सबसे पहले क्वेश्चन को रिलेट करेंगे हमारी ज्योमेट्री से। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल वुड बी सरफेस एरिया, दैट इज CSA, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। गॉट इट और नॉट बेटा? क्लियर और नॉट? मैम एक पायर स्क्वायर माइनस होगा ना, क्योंकि एक पायर स्क्वायर ऐड होगा ना इफ टेकिंग सीएसए ऑफ सिलेंडर। हम क्योंकि ऊपर का पार्ट हम असूमिंग इज वॉल। ऊपर का लिड, दिस लिड, यस मैम, यस मैम। where have they told you that this vessel is closed vessel? Did they use a word closed vessel? तो हो भी तो सकता है this is only a glass, although with a hemispherical bottom it is hard to imagine, but this can be anything, right? So this vessel is not closed. Vessel has to be closed better to take a lid here. This word, Yes. closed word would be there, okay? चले अभी आगे। तो अभी CSA of cylinder. To find out this, let us have the logic. Perimeter of the base. Perimeter of the base was 2 pi r times height, right?
But you don't know the height of the cylinder now. How would we do the question? Ma'am, 13 minus 7. Good. Listen why. This is 7, right? And a hemisphere has got this 7 radius in all directions. So it's in this direction as well, it is 7. So if you relate it here, this will be 7, right? So from the complete 13 thing, if you subtract this 7, you will get this thing or not, right? है ना? 13 minus 7 is 6. So the height of the cylinder now is 6. For your marking scheme for boards, you will have to calculate this. I'm doing it all in the diagram. Don't blame me later, मैम आपने बताया नहीं था कि ये आंसर शीट में लिखकर आना है, प्री बोर्ड में मैम ने मार्क्स काट लिए. This all is very obvious, you have to write it. Okay? तो आप height of cylinder calculate करके दिखाएंगे. मैं नहीं करके दिखा रही हूँ. CSA of cylinder के लिए I'm putting the formula first 2 pi RH plus now for hemisphere it is 2 pi R square. And R is the same in both the cases. So I will take R common here. I will make my own formula for this situation. So 2 pi R I am taking in common H plus R. Got it or not? This is my formula. Why am I doing this? क्यों मैं बार बार 2 बार पाई लगाऊं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, R से मल्टीप्लाई करूं, when I can do it once. So this is the formula for this condition only. 2 pi R H plus R. Now let's put the values. They have told you that until unless mentioned, you have to use pi as 22 by 7. So 22 by 7 into R ka value is 7 again. H plus R is, now this H is a height of the cylinder. So this is 6 plus this R is 7. Got it or not, beta ji? Clear or not? 7 से 7 cancel करो, it is 44 times 13. Solve कर लोगे? Quickly do it everyone, जल्दी से. और area है तो square units. जल्दी जल्दी everyone, quickly. 1 minute writing time given. जल्दी से सब लोग लिख लो calculation करके. Yes, ma'am. Okay. Starting with the next question now. Question number 3. A toy is in a form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere. So this is one hemisphere. On the top mounted is a cone. A toy is in a form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of the same radii. The total height of the toy is 15.5. Find the total surface area of the toy. Who will tell me how can we find out the TSA? I just need the concept. किसका TSA ऐड करना है, किससे CSA से ऐड करना है, कोई कॉन्सेप्ट बताएगा मुझे? बताओ प्रिशा. Ma'am, we'll add the CSA of cone to CSA of hemisphere. Good, nicely thought. So I will write this as TSA of toy is equals to CSA of hemisphere plus CSA of cone. फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि दोनों का रेडियाई सेम है. आई हैव गॉट चांस ऑफ टेकिंग थिंग्स कॉमन, सो आई विल यूज दैट. CSA of hemisphere is 2 pi r square. CSA of cone, जल्दी से बताओ अगम. CSA of cone Fire. pi r l. क्योंकि दोनों का रेडियाई सेम है, आई कैन टेक दैट एज कॉमन, और पाई भी कॉमन है. पाई आर आई हैव टेकन एज कॉमन. यहाँ बचा 1 2 एंड 1 r प्लस यहाँ बचा l. राइट और नॉट? है ना? And I am writing for L. Let me find out first. For L is equals to under root h square plus r square. Right or not, बच्चे? What is the height again? We don't know.
12. अभी मुझे अनघा, you tell me, what is the height of cone? Tell me the Ma'am, concept, I don't want the calculations अभी. अनघा जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ बच्चे. नहीं आ रहा. अगर ये यहां से यहां तक टोटल 15.5 है बच्चे, उसमें से हेमिस्फेयर का रेडियाई 3.5 है बेटा. टोटल लेंथ 15.5 से ये 3.5 माइनस करेंगे तो ये हाइट पता नहीं चल जाएगा बच्चे. Yes, ma'am. Okay. So that is the concept is 15.5 minus 3.5. Height of cone will be the total height of the toy minus the height of the hemisphere, that is radii of the hemisphere, that is 15.5 minus 3.5, that is 12, right? So यहाँ पर I am putting the value, यहाँ पर 12 mention कर देते हैं. मैं सिर्फ डायग्राम में mention कर रही हूँ, आपको calculations में show करना है. ठीक है. So under the root h square is 12 square plus r square is 3.5 squared. 35 का स्क्वायर जल्दी से किसको निकालना आता है? A number ending with 5, रुको बताना नहीं है, just tell me if you know the trick. The number ending with 5 का स्क्वायर का trick? 3 into 4, which will be 12, and then 5 square 25. Good. Always, whenever you are squaring the number ending with 5, what you need to do is, जैसा 45 नंबर हो अगर आपके पास, उसका स्क्वायर करना है तो 4 को उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 5. 4 के बाद 5 आता है ना काउंटिंग में, तो 4 को 5 टाइम्स किया, दैट इज 20, और हमेशा फॉलोड बाय 25. सो 2025 इज द आंसर, राइट? ऐसे ही 75 का स्क्वायर वुड बी, हु विल टेल मी? किसका टर्न? सारा, यू टेल मी जल्दी से. मैम टेल मी विदुषी. 5625. Yes, absolutely correct. 7 times 8, the consecutive number is 8. 7 8s are is 56, 25, 5625. Got it everyone or not? 85 का स्क्वायर सारा. मैम 7225. Absolutely right. So 35 का स्क्वायर क्या हुआ? 1225. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके. सो 1225 अगर 35 का स्क्वायर था तो 3.5 का क्या होगा? 35 का स्क्वायर इज 1225. अभिनव, 3.5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? Ma'am, हाँ, 12.25. 12.25, राइट. अगर सिंगल डिजिट है डेसिमल प्लेस पे तो यहाँ डबल हो जाएगी, डबल हो जाती है स्क्वायर में प्लेसेस, है ना? सो दैट्स 12.25. सो 12 स्क्वायर्ड आई नो इज 144 प्लस दिस इज 12.25. कोई प्रॉब्लम? ऐड करें 144 and 12.25. 0.25 here and this is 6 and 5, 156.25. 15625 is किसका स्क्वायर? 125 का. जल्दी से बताओ याद करके. 125 का ही तो स्क्वायर था. 3125. पहले 525, 125, 625, then 3125, then 15625. यस, मेरे हिसाब से तो 125 का. फिर भी चेक करो, स्क्वायर रूट चेक करो. मेरे हिसाब से तो Yes, 125 ma'am. का स्क्वायर है. Yes, ma'am. राइट. ऐसे याद कर लो बेटा, पावर्स ऑफ 5. जैसे बचपन में पावर्स ऑफ 2 याद किया ना, 2 4 8 16 32 64 128 256, ऐसे सब याद किया है ना. वो 512 1024 10 तक याद किया है. ऐसा पावर्स ऑफ 5 भी याद करो. 5 25 125 625 3125 15625. कैलकुलेशंस में टाइम सेव करना है एग्जाम में, पावर्स याद होनी चाहिए कम से कम 5 तक, सब नंबर्स की, 9 तक के नंबर्स की. ठीक है, चलिए अभी आगे. तो दिस इज अंडर द रूट 156.25. और मैंने आपको नंबर तो बता दिया 125, लेकिन अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएं? अगम, किधर लगाएं डेसिमल पॉइंट?
क्योंकि 15625 का स्क्वायर रूट है 125। 12.5 एब्सोल्युटली। यहाँ डबल जो डिजिट्स था डेसिमल प्लेस वो 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, है ना। सो द आंसर इज 12.5। इसका मतलब दिस स्लांट हाइट इज 12.5। आपको समझ में आ रहा है हाउ आर यू गोइंग टू सेव टाइम इन कैलकुलेशंस? ठीक है, हो गई डायमेंशंस फाइंड आउट, एल निकल आया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लोगे, करे जल्दी से। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5। अरे वाह, वेरी गुड, काट दो 0.5। 2r plus l means 7 plus l is 12.5। मेरे पास आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस इस, बट आप नीटली करना क्योंकि ऐसे में चांसेस हाई होते हैं मिस्टेक्स के। 22 into 0.5 is 25, 22 halved that is 11। समझ में आ रहा है? 0.5 is half, नो 22 का हाफ करना है ना, 11 हो गया ना। कैलकुलेशंस को स्मार्ट बनाने का तरीका समझो बेटा, नहीं तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं एग्जाम में। अगर आप अपनी कैलकुलेशंस में स्मार्ट नहीं हो तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप लोगों को ट्रिक्स बता रही हूँ, प्रैक्टिस आप ही लोगों को करनी है। मैं तो एक दो क्वेश्चंस में ट्रिक बता के छोड़ दूंगी क्वेश्चंस को, इसके आगे आपका काम है सॉल्व करना, मैं नहीं करा रही। इसीलिए वी आर आउट ऑफ प्रैक्टिस समटाइम्स फॉर कैलकुलेशंस, बट आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो डूइंग दैट। ओके, सो व्हाट इज दिस नाउ? 12 plus 7 is 19.5, है ना। कर लोगे सॉल्व अब इसको? जल्दी से करो। 19.5 into 11 कैसे करते हैं, फटाफट से। 214.5। 1.5 समझो, इसके लिए भी कैलकुलेशन कैसे बनाओगे, आसान। 11 टाइम्स करना है ना, तो 195 को 2 टाइम्स लिख दो स्टेयर की तरह। इंटू 11 करके फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, उसको स्टेयर एडिशन कर दो। सो दिस इज 5, 9 plus 5 is 14, 10 and 11 1 and 2, 2145 है ना आंसर। दैट्स हाउ यू मल्टीप्लाई 3 digits with 11 क्विकली। अगर 2 digit आ जाए 11 से मल्टीप्लीकेशन, जैसे आई गिव यू 98 times 11, हाउ वुड यू डू दैट क्विकली? चलो अभी छोटे नंबर से बताती हूँ, पहले नॉट 98, पहले छोटे नंबर से। सो 42 times 11 कैसे करोगे जल्दी से? 4 को लिखोगे, इधर समझो सब लोग ध्यान से। 4 को लिखो, 2 को लिखो, दोनों को एक्सट्रीम एंड्स पे कर दो, और बीच में दोनों का सम 462 इज द आंसर। ठीक है, जैसे कि 35 times 11, 3 को लिखो, 5 को लिखो, बीच में दोनों का सम 385। 2 डिजिट का सिर्फ गैप क्रिएट करो, बीच में सम लिखो। अब वापस उस नंबर पे चलती हूँ जो शुरू में लिखा था, 98 times 11। 9 लिखा, 8 लिखा, बीच में दोनों का सम इज 2 डिजिट, दैट इज नॉट अलाउड। Writing 2 digit numbers at one place is not allowed. 9 plus 8 is 17. 7 right here, 1 goes up. 1078 is the answer. Okay, clear or not everyone? Gap increase करो, बीच में you need to write the sum. अगर 2 digit है तो उसका units place वहां लिख दो, ones place को आगे carry forward. Okay, simple or not? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? जल्दी से बताना मुझे आंसर जरा। 87 times 11 का आंसर जल्दी से देखें कौन पहले बोलेगा। 967. गुड, वेरी गुड अद्विका, शाबाश। 967 ठीक है ना। 967 और 957? 957। 957 बच्चे, 967 नहीं, 957, क्योंकि 8 and 7 टुगेदर इज 15 बच्चे, है ना। तो Yes. 957 ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर कोई भी अपनी कन्वेंशनल कैलकुलेशन मेथड फॉलो मत करना, जैसा बता रही हूँ उसे फॉलो करना। लेकिन अगर आप ऐसे सोचें कि इस ट्रिक को एग्जाम में यूज करेंगे, अभी अपने कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, आपको वहां ट्रिक्स ठीक से याद ही नहीं आएंगी। सो दिस इज ओनली प्रैक्टिस दैट कैन मेक यू गुड एट इट। इसीलिए प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन में कोशिश करो ट्रिक ढूंढने की और यूज करने की। जहां भी नंबर एंडिंग विद 5, रेडियस मेनली 7 मिलता है, 3.5 मिलता है, और कौन सा एक वैल्यू मिलता है जो कि कट हो जाता है जल्दी से 7 से, अभी याद करके बताती हूँ। तो मोस्टली कुछ सेम वैल्यूज मिलती हैं जो 7 से डिवाइड हो जाती हैं, जब भी आपको पाई 22/7 यूज करना होता है। तो इन कैलकुलेशंस को सीखो और फटाफट से करो। जब भी कोई चीज आपको 0.5 मिल जाए, नंबर को हाफ कर दो इफ दैट इज इवन, है ना। सो फॉलोइंग दैट ट्रिक्स, ट्राई सेविंग टाइम इन कैलकुलेशंस इन दिस क्वेश्चन। अदरवाइज ये चैप्टर इज केक वॉक, फ्री के मार्क्स हैं ये चैप्टर,
फॉर्मूला हम सबको समझ में आ गए, कैलकुलेशन में हम प्रो हैं। बोलो इस चैप्टर में टफ क्या रह गया? फ्री के मार्क्स नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, कुछ इंट्रीक नहीं हो सकता, कुछ टीचर क्वेश्चन को रोटेट नहीं कर सकती, कंबाइन कर सकती है फिगर को, कभी कटोरी के ऊपर कोन रख देगी, कभी कटोरी के ऊपर सिलेंडर रख देगी। दैट इज व्हाट द टीचर इज डूइंग है, राइट और नॉट? ठीक है ना? चले अभी आगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सरफेस एरिया सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स इसने नहीं लिखे, उसका हाफ मार्क कट है फाइनल स्कोर में से। तो याद से स्क्वायर यूनिट्स लिख कर आने हैं, जो भी सेंटीमीटर गिवन है सब कुछ, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके Ma'am, do we need to write given to find and all in गिवन this? टू फाइंड नहीं होता है इस चैप्टर में, गिवन टू फाइंड नहीं होता है, वो ज्योमेट्री में होता है। दिस इज नॉट ज्योमेट्री बच्चे, मेंसुरेशन है ना ये। तो इसके अंदर लेकिन आपको चीजें फाइंड सारी करनी होती हैं। ये आर वर्बली आप सिर्फ डायग्राम में लिख के नहीं छोड़ सकते, आपको वो सब स्टेप्स दिखाने हैं। दैट इज इट, इसमें गिवन टू फाइंड नहीं होता है कुछ भी चैप्टर में। चले अभी आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन। नो, मैंने मिस तो नहीं किया ना? हाँ ठीक है, गुड है गुड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 नाउ वी आर डूइंग। अब मुझे एक बार चेक करके बताओ, जिन बच्चों ने आंसर्स अटेम्प्ट किए थे, डिड यू टेक दिस लॉन्ग और लॉन्गर व्हाइल यू वर अटेम्प्टिंग? Ma'am, longer. ऐसे ही अगर कैलकुलेशन हैक्स नहीं पता होंगे तो फिर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? इसीलिए ध्यान रखो। अभी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। तो इसका मतलब कल किया था ना, ये एक बॉक्स क्यूब के ऊपर कटोरी रख दी है, और हमने क्या बात की थी, क्यूब के ऊपर बाउल रखाएंगे तो बताया था ना। चलो उसका टॉप व्यू देखते हैं। अभी Perimeter. वी आर डिस्कसिंग द टॉप व्यू, टॉप व्यू ऑफ दिस गिवन कॉम्बिनेशन। टॉप व्यू ऊपर से कैसा दिखेगा? ऊपर से एक स्क्वायर होगा और उसके बीच में रखी होगी एक कटोरी। कितने की बताई है? ओ देर आस्किंग व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ दैट कटोरी। चलो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। Ma'am, 7√2. अभी समझो पहले एक बार, मुझे आंसर्स याद नहीं होते बेटा ऐसे। देखो इधर ध्यान से, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, सिर्फ टॉप व्यू है अभी ये, और इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ दैट हेमिस्फीयर दैट यू कैन हैव? बच्चे देखो, अगर आपने एक ये अरेंजमेंट, ये मैक्सिमम बड़ा सर्कल है ना दैट यू कैन कीप हियर। इससे बड़ा सर्कल इफ यू ट्राई टू कीप, इससे बड़ा सर्कल अगर आप रखने की कोशिश करते हैं, लेट्स से ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, वो एजेस से बाहर चला जाएगा। दिस पोर्शन हियर इज फॉलिंग आउट ऑफ दैट क्यूब, है ना बच्चे? तो आप मैक्सिमम उसकी एज जितना, ये जो उसकी एज है, मैक्सिमम आप उसकी एज जितना डायमीटर ले सकते हैं ऑलवेज। मेकिंग सेंस और नॉट एवरीवन? इसका मतलब मैक्सिमम जो डायामीटर हो सकता है दैट कैन बी 7। पर मैं तो डायग्राम में कभी डायमीटर मार्क नहीं करती, तो मैं रेडियस मार्क कर देती हूँ, दिस इज 3.5। तो मैक्सिमम डायामीटर क्या पॉसिबल है? व्हाट इज द आंसर टू पार्ट 1 है? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने डायामीटर पूछा है, उन्होंने रेडियस नहीं पूछा। इसीलिए मार्किंग स्कीम के लिए क्या करना है, यू विल राइट द रेडियाई, you will not write the radii, you will write the diameter. So diameter of hemisphere that you can take maximum here is 7 centimeters. ठीक है, first part done. Now find the surface area of the solid बच्चे। तो ये तो सिर्फ टॉप व्यू था, यहाँ अब हमें डिस्कशन ये करना है कि ये जो पोर्शन है ना, टॉप व्यू में से क्यूब का जो एक फेस था, 6 फेजेस ऑफ क्यूब हमने बात की थी, और कहाँ देखा है मैंने सुबह क्यूब? गिव मी 1 minute, let me bring that.
राइट बच्चे? सो दिस इज वन क्यूबिकल बॉक्स दैट आई हैव. ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसके ऊपर बाउल अरेंजमेंट रखा है. बाय चांस ही मुझे भी वही अरेंजमेंट मिल गया, एग्जैक्टली व्हाट दे आस्क्ड, है ना? और द एज सिमिलर टू द एज मैक्सिमम बाउल, है ना बच्चे? ऐसे है ना ये अरेंजमेंट? तो अब हमें टॉप व्यू की बात करनी है. देखो आप लोग टॉप व्यू देख सकते हो. व्हाट इज द Yes, टॉप ma'am. व्यू सेइंग हियर? क्या हमें जब हम इसका टीएसए जब फाइंड करेंगे तो क्या मुझे ये पूरा फेस चाहिए क्या? डू आई नीड दिस फुल फेस? नो, आई डोंट नीड दैट. ये पूरा का पूरा जो एरिया है क्यूब का, दैट इज ए स्क्वायर. इस ए स्क्वायर में से आई ओनली नीड दिस एजेस, ये स्मॉल स्मॉल एजेस दैट आई हैव हियर. तो अगर मुझे एक एज का एरिया मिल जाए मैं 4 टाइम्स कर सकती हूँ, पर ऐसी तो शेप हमें कोई पता ही नहीं है. तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट से तो नहीं निकल सकता इसका आंसर. पर क्या ऐसे निकल सकता है कि ये ए स्क्वायर है, इसमें से ये जो सर्कल है ये माइनस कर दो सर्कल, तो मिल जाएगा ना 4 एजेस का एरिया. गेटिंग इट एवरीवन और नॉट? हेड नॉट करके बताओ. अगम कैमरा क्यों ऑफ है? बोलो अद्विका बेटा. मैम हम इसमें वो सेक्टर्स वाला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने नहीं किया था बेटू, एरिया शेप ही नहीं है बच्चा. देख सेक्टर के लिए मैं इस बॉक्स को गंदा नहीं कर सकती. दिस इज लाइक वेरी डियर टू मी. ये ऐसा यहाँ से इस तरीके से आता है ऐसे, यस मैम तो वो आंख होना चाहिए ना, आंख. ठीक है, यस मैम ऐसे वो तो है नहीं यहाँ पे. तो क्या करना है हमको यहाँ पे? ये ऐसे, ये है ना, तो इसको ऐसा फाइंड करने की जगह हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर में से ये पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? आ जाएगा ना बेटा? तो 5 जो रेस्ट ऑफ द 5 फेसेस है, 1 2 3 4 5, तो मतलब फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट एंड 1 बेस, ये 5 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा? क्या किया था? एक फेस का एरिया इज ए स्क्वायर, तो 5 फेसेस का इज 5 ए स्क्वायर. तो 5 ए स्क्वायर तो अनऑल्टर्ड फाइंड करना है आपको, उसमें तो कोई चेंज नहीं है. लेकिन जो टॉप व्यू है उस ए स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर माइनस करके एक तो एजेस आएंगे. पर क्या हम नहीं भूल रहे यहाँ पे ये बाउल, ये भी तो एक सरफेस है. ये जो है यहाँ पे, ये भी तो एक सरफेस है विच इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट और नॉट एवरीवन? तो क्या करेंगे? एक ए स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर माइनस करना है और 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना है. तो कल हमने क्या समझा था? 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, एक पाई आर स्क्वायर माइनस करना है. इसका मतलब एक्चुअली एक पाई आर स्क्वायर ही ऐड करना है. बताया था कि नहीं बताया था? समझो फिर से Yes. क्या लिखवा रही हूँ. ये हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है उसके नीचे का सर्कल. तो एक्चुअली इसे सॉल्व करें तो एक पाई आर स्क्वायर ही है ना बेटा? वो किसमें? ए स्क्वायर में ऐड करना है बस, फॉर द टॉप व्यू. गेटिंग इट और नॉट एवरीवन? इफ यू एक्सप्लेन द टीचर लाइक दिस, इट इज परफेक्टली अलाउड. मैथ्स की मार्किंग स्कीम जब आती है ना, नीचे टीचर के लिए एक लाइन लिखा आता है कि अलाउ द क्रिएटिव मेथड टू द चाइल्ड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एनीवेज. आंसर्स करेक्ट होने चाहिए एंड द थिंग्स शुड बी लॉजिकल. तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर से टॉप व्यू फाइंड करते हो, दी टॉप सरफेस ऑफ द बॉटम, बिल्कुल आंसर गलत नहीं है. आ गई बात समझ में? हो सकता है मैक्सिमम जितनी रेफरेंस बुक्स आप देखोगे उसमें ये नहीं होगा, उसके अंदर वही पहले ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ऐसे ही होगा. पर आप ऐसे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक्सप्लेन द टीचर हाउ हैव यू गॉट दिस. बिफोर पुटिंग द वैल्यूज जितना फॉर्मूला में चेंजेस करने हैं कर लो, सो दैट लीस्ट पाइज की वैल्यू पुट करनी पड़े. ठीक है? आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो मैं यहाँ 5 ए स्क्वायर में प्लस एक ए स्क्वायर में प्लस एक पाई आर स्क्वायर सॉल्व कर रही हूँ, राइट और नॉट? क्या मैं 6 ए स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर नहीं ऐड कर रही हूँ? मैं मेरे फॉर्मूलाज को ही इजी बनाए जा रही हूँ. एंड नाउ पुट द वैल्यूज एंड चेक अगर आपके रेफरेंस आंसर शीट में जो आंसर है वो आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं. क्विकली 1 मिनट गिवन, फटाफट से करके बताओ मुझे जल्दी. यस मैम आंसर बताओ क्या है? मैम 332.5 दैट्स इट. हाफ मार्क कट. सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर. अभी मुझे बताओ रेफरेंस आंसर शीट में यही है? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. चलें अभी आगे. नहीं मैम. हाँ क्यों?
मैम बस अच्छा, अब इसके आगे डाइजेस्ट नहीं होगा। नहीं मैम। Yes. मैम डाइजेस्ट हो जाएगा, आज मन नहीं कर रहा। ये भी अच्छा था। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 तक होमवर्क है, अगर मन कराओ फिर होमवर्क हाँ में। वो तो कर रखा है। वो अच्छा already हो अगम, तूने खुद से ट्राई किए थे बेटा, कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले? मैम उसमें से आई थिंक थर्ड वन आई गॉट रॉन्ग बट टिल फोर्थ आई हैड डन। थर्ड वाला फोर्थ वाला का एक एग्जांपल गिवन था पहले। अभी बाकी सब क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं। प्लीज डोंट गूगल इट। गलत करोगे मुझे चलेगा, सबमिशन मत देना, सबमिशन नहीं करना है, पर वो सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी 5। ओके? और मैम सितंबर में तो नो होमवर्क पॉलिसी थी। तभी तो कहा होमवर्क सबमिट मत करना। तभी तो कहा सबमिट मत करना, क्योंकि माय कोऑर्डिनेटर्स आर ऑन ब्रेक, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्टूडेंट्स दोज हु हैव देयर एग्जाम्स। तो सबमिट मत करना, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना, कोशिश जरूर करना। ओके? और जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए नो होमवर्क प्लीज, वो अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे तो चलेगा। ओके? चलो बाय बाय फॉर नाउ बच्चा लोग। थैंक यू We'll मैम। do surface area and volume only tomorrow. For this week, we'll be doing this mensuration chapter only. Okay? Bye bye. Next Bye. batch, cameras on. इवनिंग करो क्लास जल्दी नहीं से।